since the topic of the session is good health and well-being, we'll try to understand what exactly is good health and how do we reach a state of wellness within ourselves, right? What are these words actually? Good health, well-being. What does health really signify? When you talk in the terms of physical health, we all know what physical health is, right? You get some test, you have your markers, you know where do you stand, and that is how you determine your physical health. But what exactly is this mental health? What exactly is this health of the mind that most of us nowadays see here we hear regularly? What exactly does this health is? We cannot just simply claim ourselves to be mentally healthy. We cannot say that, I am mentally healthy without actually knowing what is sickness. If you do not understand what is the parameter that we have to assess ourselves on, what are the markers that we upon which we can assess ourselves and then declare that we are mentally healthy. So if we do not know what exactly our mind is, and what is its optimal state, we cannot basically declare ourselves as mentally healthy. We have to first understand what does a healthy mind actually means, and in fact, what is mind. What do we understand by mind? We all say that we want a peace of mind. If you were to say it in Hindi कि मन अच्छा होना चाहिए, मन सुखी होना चाहिए, मन बेचैन रहता है, you would hear these terms a lot, right? कि मन परेशान है यार, मन अकेला लग रहा है. तो ये मन क्या है? What is this mind that we keep on hearing? We'll have to first understand that this mind that we generally refer to, it is an instrument, है ना? It is a complete machine in itself. It has its own tendencies, it has its own functions, उसके अपने कुछ तौर तरीके हैं. और जब तक हमें उसके ये फंक्शंस पता नहीं होंगे, उसके तौर तरीके पता नहीं होंगे, उसकी टेंडेंसी पता नहीं होगी, तब तक हमें उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होगा. हम बोलते जाएंगे कि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए है, हम बोलते जाएंगे कि हमें अपना मन हल्का रखना है, बट वी विल नेवर एक्चुअली नो व्हाट इज दिस पीस ऑफ माइंड एंड व्हाट इज व्हाट एंटेल्स अ हेल्दी माइंड. तो ये जो हम कह रहे हैं कि इस मन के कुछ तौर तरीके हैं, इसके कुछ वेज हैं, इसकी कुछ टेंडेंसीज हैं, ये टेंडेंसीज क्या हैं? और क्या ये एक पर्टिकुलर माइंड की टेंडेंसी है? जब हम माइंड की बात करते हैं कि माइंड को हमें समझना है अपने, तो क्या ये कोई एक पर्टिकुलर माइंड है जो हमें समझना है? कि हमें एक विमेन का माइंड समझना है, हमें एक मैन का माइंड समझना है, व्हाट इज अ पंजाबी माइंड और व्हाट इज अ इंडियन माइंड? इज दैट हाउ वी शुड अंडरस्टैंड माइंड? और माइंड एज वन सिंगुलर यूनिट, माइंड ऑफ ह्यूमैनिटी, we will understand that mind in a whole sense, right? Not in just some partial sense, not in its cultural context, not in its gender social context, not in its even economic context कि एक अमीर इंसान का माइंड कैसा होता है, गरीब इंसान का माइंड कैसा होता है, ये सब नहीं. ये सारी उसकी बाहर की सिचुएशंस हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर external parameters. These are external circumstances which the mind is subjected to. We are here to understand what exactly what the mind is. The mind, not a mind, not a particular mind. We have to understand the mind. What is the mind of humanity? So let's try to understand what mind really is, and let's try to see what are its tendencies, how does it operate. एक माइंड की टेंडेंसी अगर आप देखोगे जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो है माइंड ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, राइट? माइंड ट्राइज टू डिफेंड इटसेल्फ, है ना? वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. इट ट्राइज टू सेफगार्ड इटसेल्फ. तो हमें ये देखना है कि ये जो माइंड जो हमेशा प्रोटेक्ट करता है, ये सेफगार्ड करने की कोशिश करता है, ये बचाने की कोशिश करता है, ये बचा क्या रहा है एट द एंड ऑफ द डे, है ना? हम देख तो समझे तो सही कि ये माइंड बचाना क्या चाहता है. हमेशा ये प्रोटेक्ट करना चाह रहा है. डिफेंड, हम कहते हैं डिफेंड मत करो अपने आप को, डोंट डिफेंड योरसेल्फ, यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. वी से दीस थिंग्स, राइट? तो व्हाट इज इट दैट वी आर रियली ट्राइंग टू डिफेंड? वो क्या बचाना क्या चाहता है अपना माइंड? ध्यान दो, माइंड जिस चीजों से बना हुआ है, जिस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है, वो सारी चीजों को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है. इसका मतलब क्या है? उसकी जो सारी एसोसिएशंस हैं,
उसकी जो सारी उसके दिमाग में जो उसकी आइडियाज हैं, जो उसकी एक सेल्फ इमेज है, हम अपने दिमाग में अपनी एक इमेज लेके चलते हैं कि देखो मैं ये हूं। वो इमेज कभी ऐसी हो सकती है कि देखो मैं एक भला इंसान हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, आई एम अ काइंड हार्टेड पर्सन। हर इंसान तो मोस्टली यही बोल देते हैं ना, स्पेशली जब कोई गुजर जाता है तो सब इंसान को यही बोलते हैं कि ये तो अच्छे आदमी थे, ये तो अच्छे इंसान थे, ये तो कितने बढ़िया इंसान थे। तो ये अच्छा इंसान हम बोल तो देते हैं, ये हमारी इमेज है एक अपने बारे में ना, एक सेल्फ इमेज है। और जिसको हम कह रहे हैं कि माइंड हमेशा प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, वो हमेशा अपनी सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो जो उसके बारे में एक आइडिया है उसका, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के पीछे लगा रहता है। और वो क्यों उसे प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि उसकी जो उसके बारे में सेल्फ इमेज है, और उसकी सेल्फ इमेज बनती कैसे है? चीजों से अपने आप को एसोसिएट करके। वो आप देखोगे कि किन किन चीजों से अपने आप को एसोसिएट करेगा। वो शायद अपने कल्चरल बैकग्राउंड से अपने आप को एसोसिएट करेगा, वो अपने जेंडर से अपने आप को एसोसिएट करेगा, वो अपनी एक रेप्यूटेशन से अपने आप को एसोसिएट करेगा। वो चाहेगा कि उसकी इज्जत हो, वो चाहेगा उसका एक इकोनॉमिक स्टेटस हो। और इनफैक्ट वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा? वो बोलेगा कि देखो उसके साथ जो उसकी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो अपने कपड़ों से जुड़ा रहता है, वो अपने घर से जुड़ा रहता है, वो अपने रिलेशनशिप्स में जो उसके लोग हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उनसे जुड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी एक सेल्फ इमेज का पार्ट होती हैं। और हम इनसे क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि ये हमें होने का अपना एहसास दिलाती है। It basically affirms our existence. It validates our existence. It tells us that yes, you really are. That you, our self image, the things that the mind associates itself with, they basically affirm our existence. वो हमें थोड़ा विश्वास सा दिलाती है कि ये हम हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो जरा, अगर हम बोलते हैं कि माइंड क्या है, तो एट द एंड ऑफ द डे माइंड क्या बोलता है कि वो क्या क्या है? वो जिन चीजों से एसोसिएट कर रहा है, वो जिन चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उन्हीं से तो वो मिलकर बनता है ना। और उसी से ही वो अपनी पहचान बनाता है। वो बोल देता है कि देखो ये वो है। तो हमारी जो इनफैक्ट हमारा नाम है, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरी जो मेमोरी है, जो इतने सारे मेरे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, यही तो मेरे को एक तरीके से विश्वास दिलाते हैं ना कि हाँ देखो तुम हो, तुम एग्जिस्ट करते हो। अपने आप को सोच के देखो जरा, जब हम बोलते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो ये मैं क्या है एट द एंड ऑफ द डे? हाँ, सो सोल, what is it what entails being a human? जब हम बोलते हैं कि मैं हूं, माई पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें माइंड के अंदर इंक्लूड होती है। माई पर्सनैलिटी, माई थॉट्स। इनफैक्ट माइंड अपने आप को अपनी बॉडी से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि वो बोलता है अपने चेहरे से ही अपने आप को पहचान पाता है ना कि ये उसका चेहरा है, ये है मैं। तो ये सारी चीजों से वो अपने आप को एसोसिएट करेगा। वो बोलेगा कि देखो ये मेरे को मेरे होने का एक तरीके से विश्वास दिला रही हैं। मेरे को मेरे चेहरे से पहचाना जाता है, मेरे को मेरे नाम से पहचाना जाता है, मेरे को मेरी और अलग अलग तरीके की आइडेंटिटी की, आप स्टूडेंट हो, कभी आप सन हो किसी कॉन्टेक्स्ट में, कभी आप डॉटर हो, कभी आप ब्रदर हो, कभी आप सिस्टर हो। ये सारी उसकी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जिसके थ्रू वो पहचाना जा रहा है। और ये सारी चीजें मिलके हमारा माइंड बनता है। ये हमें अफर्म कराती हैं कि देखो हाँ तुम एग्जिस्ट करते हो अपने आप में। अब इन्हीं चीजों को जब चैलेंज मिलता है, जब इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तब माइंड फील करता है इनसिक्योर, क्योंकि उसकी जो सेल्फ इमेज है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही है। आप ये देखो कि आप ऑफेंड कर कैसे होते हो वेन एवर समबडी से समथिंग बैड टू यू, और वेन एवर समवन अब्यूजेज यू, राइट? व्हाई डू वी गेट ऑफेंडेड? वो क्या चीज है जिससे हम ऑफेंड हो रहे हैं? वो हमें डायरेक्टली कुछ बोल देता है, ही सेज सम वर्ड, ही टेल्स अस दैट यू नो यू आर अ स्टूपिड पर्सन, you are an idiot, and we have an image about ourselves. And now this image that we have, which our mind associates itself with, this image is threatened, right? This image is under it is facing a sort of challenge. उसको थोड़ा सा एक चैलेंज मिला है कि अरे आई एम इडियट, बट मेरे दिमाग में मेरी क्या इमेज है? प्रोबेबली आई एम थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समवन हु इज स्मार्ट. Probably I think of myself as someone who is, you know, intelligent. And when this image is challenged, then I am offended. And then the mind tries to protect itself. The tendency of the mind is to secure its self-image. If our self-image is of an intelligent person, of a smart person, then the mind will latch on to this image. Mind will say, no, I am this image and I have to protect it.
और आप ऐसे ही देखो कि कैसे और अलग अलग डायरेक्शंस में माइंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी जो पहली जो क्वालिटी है वो है ही इनसिक्योरिटी की। हमारा माइंड इनसिक्योर होता है और वो सारी चीजों पे फिर डिपेंड करता है अपने आप को सिक्योर फील कराने के लिए। आप खुद ये देखो कि किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट क्यों चाहिए होती है, कोई भी इंसान इज्जत क्यों मांग रहा है? वाई वी ट्राई टू हैव अ रेपुटेशन, वाई डू वी ट्राई टू हैव अ स्टेटस? डू यू रियली नीड स्टेटस? एक बार सोच के देखो जरा, हु इज द वन हु नीड स्टेटस? कौन मांगता है कि नहीं मेरे को इज्जत दो? कौन मांग रहा है कि नहीं मेरे को रिस्पेक्ट दो? इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम सामने वाले से कुछ मांग रहे हैं कि प्लीज ओब्लाइज मी, कि मेरे को आप रिस्पेक्ट दो, मेरे को आप रेपुटेशन दो, मेरे को कुछ मानो, मेरा एक स्टेटस है और वो स्टेटस प्लीज एक्नॉलेज करो, है ना? हम सामने वाले पे डिपेंड कर रहे हैं। और अब ये जो हेल्दी माइंड है, क्या ये डिपेंड करेगा? क्या ये किसी चीज पर निर्भर होगा अपनी आइडेंटिटी के लिए? और अगर ये सामने वाले पर निर्भर हो रहा है, उसको रिस्पेक्ट के लिए उसकी निर्भर हो रहा है, वो चाह रहा है कि उसको पूछें, वो चाह रहा है कि अरे उसकी थोड़ी रेपुटेशन हो, उससे आराम से बात करी जाए, ये वाली जो सारी चीजें हैं ये माइंड चाहता है कि उसे मिले, क्योंकि वो अपने आप में इनसिक्योर है। जो भी इंसान ज्यादा रेपुटेशन की डिमांड कर रहा है, जो भी इंसान ज्यादा स्टेटस की डिमांड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इनसिक्योर है। वो अपने आप में शायद अपने आप को कुछ भी महसूस नहीं करा पाता, इसीलिए वो सामने वाले के पास जाता है कि आप मेरे को आओ और आप मेरे को एक तरीके से एक्नॉलेज करो, आप मेरे को अफर्म करो, आप मेरे को अप्रूव करो। यही जो माइंड होता है, जो डिपेंडेंट माइंड होता है, जो सामने वाले से चाहता है कि उसे अप्रूवल चाहिए, जो वैलिडेशन मांगता है, जो मांगता है कि हाँ आप मेरे को मेरे होने का थोड़ा एक स्टैंप दो मुझे, तो जो माइंड ये मांग रहा है वो माइंड अनहेल्दी माइंड होता है। हमें देखना पड़ेगा कि हम किन किन चीजों पे डिपेंड होते हैं, किन किन चीजों से अपने आप को डिफाइन करते हैं। हम होते हैं अपनी चीजों से भी डिफाइन करवाते हैं हम अपने आप को, है ना? मैं बोलता हूं कि देखो मेरे पास ये शायद फोन है, मेरे पास इस तरीके के कपड़े हैं, मेरी एक तरीके की ड्रेसिंग सेंस है, ये मेरे को डिफाइन करती है ना, ये ऐसे मैं डिफाइन होता हूं, है ना? मैं अपने शायद इकोनॉमिक स्टेटस से डिफाइन होता हूं, मैं जो चीजें पोजेस करता हूं मैं उससे डिफाइन होता हूं। और जब इन चीजों पे कोई किसी तरीके का अटैक करता है, जब ये सारी चीजें थोड़ी वल्नरेबल होती हैं, तब हम देखेंगे कि माइंड अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। हम बोल तो देते हैं कि हाँ नहीं नहीं हम चीजों से एसोसिएट नहीं करते अपनी, हम अपनी पोजेशन से जुड़े हुए नहीं रहते, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए रहते हैं। माइंड अपने आप को इन्हीं से ही डिफाइन करता है, क्योंकि जब भी आपको कोई अगर बोल दे कि यू हैव अ रियली पुअर ड्रेसिंग सेंस, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, यू आर नॉट लुकिंग गुड, कोई हमें बोल दे कि कहाँ रहते हो आप, ये किस जगह पे घर है तुम्हारा, ये व्हाट लोकेलिटी डू यू लिव इन, वी स्टार्ट टू फील अटैक्ड, राइट? हमें लगता है कि नहीं हमें शायद बुरा बोला जा रहा है, हमें शायद हम पे कोई अटैक आ रहा है, हम पर कोई किसी तरीके का उंगली उठाई जा रही है, ये हमें लगता है ना, महसूस होता है। बट हम खुद तो मानते हैं कि हम अपने आप को चीजों से अपने आप को डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम देखेंगे कि हम इन्हीं चीजों से अपने आप को डिफाइन करते हैं। कभी मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस से अपने आप को डिफाइन करूंगा, कभी मैं अपनी रेपुटेशन, अपनी जो सोशल स्टेटस है उससे डिफाइन करूंगा, कभी किसी इकोनॉमिक स्टेटस से डिफाइन करूंगा। तो जब भी माइंड डिपेंड हो रहा है, माइंड बाहर की एक्सटर्नल चीजों से अपनी डेफिनेशन खोज रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे बाहर की चीजें डिफाइन करे, ये होता है डिपेंडेंट माइंड। और हेल्थ अगर हम डिफाइन करेंगे हेल्थ को, व्हाट एग्जैक्टली रियली हेल्थ, हेल्थ कैन नॉट बी समथिंग डिपेंडेंट, राइट? वो निर्भर नहीं हो सकती। कोई हेल्दी इंसान होता है वो किसी पे डिपेंड थोड़ी ना करता है फिजिकली कि नहीं मेरे को यहां से वहां तक चला दो या मेरे को यहां से वहां तक उठा के ले जाओ, ये हेल्दी माइंड नहीं हो सकता, हेल्दी बॉडी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हेल्दी माइंड भी अगर वो किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है अपनी डेफिनेशन के लिए, वो चाह रहा है कि कोई उसे डिफाइन करे, कोई उसकी चीजें डिफाइन करे, उसकी पोजीशन डिफाइन करे, उसका इकोनॉमिक स्टेटस उसे डिफाइन करे, तो ये माइंड हेल्दी माइंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, ये चाह रहा है कि उसको कोई बाहर की एक्सटर्नल चीजें उसे डिफाइन करें। हम देखेंगे कि हमारा माइंड कभी भी शायद ऑटोनोमस नहीं हो पाता। ऑटोनोमस का मतलब समझते हैं कि उसकी कोई एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अपने आप में नहीं होती। वो हमेशा चाहेगा कि या तो वो अपने कल्चर से डिफाइन हो, वो हमेशा चाहेगा कि अपने या तो वो इंटेलेक्ट से डिफाइन हो, वो हमेशा चाहेगा या उसकी कोई एक फिजिकल क्वालिटी से वो डिफाइन हो। क्या उसके पास अपनी कोई एक ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है? तभी तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को चीजों से बहुत अटैच पाते हैं, है ना? हम लोगों से भी इनफैक्ट अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच पाते हैं। ये सारी अटैचमेंट का रीजन क्या है?
क्योंकि जब हम उनसे जाके एसोसिएट करवा लेते हैं खुद को, जब हम उनसे जाके जुड़ जाते हैं, जब हम उनसे जाके रिलेट हो पाते हैं, तब हम आते हैं एग्जिस्टेंस में, हम बोलते हैं कि हाँ हम हैं। तो ये जब हम एसोसिएट करते हैं उनसे, हम अटैचमेंट से ही एसोसिएट कर सकते हैं, किसी चीज से जुड़ के ही अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो माइंड ऑटोनोमस माइंड होता है वो अटैच नहीं होगा, वो देखेगा नहीं कि हाँ मैं किसी चीज से जाके जुड़ जाऊं, किसी चीज पर लैच ऑन कर लूं, ऑलमोस्ट पैरासिटिकल हो जाऊं किसी चीज पे। और हम ये देखेंगे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो शायद इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है अपने आप को खुद दूसरों से जाके या तो जुड़ने के लिए या तो किसी चीज से हम डिफाइन हो सके। तो ये माइंड हम देखेंगे कि ऑटोनोमस माइंड नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट माइंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कुछ चाहिए, उसकी एक कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए। सब बोलते भी तो है ना कि मेरी रूट्स कहां पर हैं, मेरी रूट्स है मेरी कंट्री में, मेरी रूट्स है मेरे कल्चर में, मेरे रूट्स है मेरे पास्ट में, मेरे रूट्स है मेरे नाम में, किसी का कोई बहुत फैमिली नेम है बहुत ज्यादा बड़ा, तो हम ऐसी रूट्स तो ढूंढते हैं ना अपनी। हमारी रूट्स कभी हम में क्यों नहीं होती हैं? और ये हम है क्या एट द एंड ऑफ द डे? हम क्या खुद से जानने की कोशिश कर सकते हैं? आई गेट बैक टू यू, यू रिमेंबर योर क्वेश्चन। क्या हम खुद से ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो एक ऑटोनोमस आइडेंटिटी है वो क्या इन बाकी बाहरी चीजों पे शायद डिपेंड क्या नहीं हो सकती, या हमें इन्हीं से ही हम अपने आप को डिफाइन करते रहेंगे? हम क्या इन्हीं पे ही डिपेंड करते रहेंगे अपनी डेफिनेशन के लिए? जो हेल्दी माइंड होता है, फिर जो ऑटोनोमस माइंड होता है, जो इंडिपेंडेंट माइंड होता है, वो फिर डिपेंड नहीं करता। वो नहीं चाहता कि वो ये नहीं समझेगा कि बाहर की कोई उसको कोई एक एक्सटर्नल चीज, कोई उसका इकोनॉमिक स्टेटस, कोई उसका फिजिकल उसकी लुक्स, कोई उसका कल्चर, कोई उसकी कंट्री की आइडेंटिटी, ये सारी चीजों पर फिर वो रिलाय नहीं करेगा अपनी डेफिनेशन के लिए, क्योंकि वो खुद से अपने आप में एक अवेयर एंटिटी होगा। वो बोलेगा मैं हूं और बस ये होना ही काफी है, जरूरी नहीं है कि मैं मेरी कोई एक फिजिकल ट्रेट बन जाऊं, कोई मैं मेरी कोई हेयर स्टाइल बन जाऊं कि देखो यू सच हैव अ गुड हेयर स्टाइल, या मैं मेरी ड्रेसिंग सेंस बन जाऊं, या मैं मेरा प्रोफेशन बन जाऊं। वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद आवर प्रोफेशन आल्सो, राइट, सो डियरली दैट यू नो आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम अ टीचर, और यू नो आई एम अ बैंकर, आई एम एन एमबीए। हम अपने आप को ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं ना। पीपल हु गो हु get themselves admitted into a higher prestigious college, how do they define themselves? Before even their name, we would often find that the name of the institution that they are associated with comes, right? I am from IIM and my name is this. I am from IIT and my name is this. And I am from Oxford and my name is this. Like, we need these institutions. We need these approval. We need this a sense of validation कि देखो ये सारी चीजें हैं, और देखो ये सारी चीजें तो सब बड़ा मानते हैं ना, तो इस बड़ी चीज से मैं भी आता हूं, तो प्लीज यू नो ये इसका मोटिव क्या है जो हम अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मोटिव ही यही है कि हम कोई एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बड़ी एक एंटिटी है ना, उससे जाके हमने अपने आप को एसोसिएट करा है, और जब हम उससे डिफाइन हो रहे हैं तब हम भी खुद को डिफाइन कर पा रहे हैं, तब हम वी आर ऑल्सो ब्लोटेड विद इन, वी ऑल्सो फील बिग बाय एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स विद समथिंग। और यही होती है आइडेंटिफिकेशन। माइंड जो आइडेंटिफाई करवा रहा है किसी चीज को, किसी भी चीज से, कोई बड़ी चीज से, कोई लार्जर चीज से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑफन आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद आवर ओन बिलीव्स। हम कोई एक बाहर कोई एंटिटी समझ लेंगे कि ये एक बहुत बड़ी सी चीज है, और उससे जाके हम एसोसिएट हो जाएंगे। एंड मोस्टली इन सम केसेस दिस एंटिटी इज गॉड ऑल्सो। we would identify ourselves with God, you know, कि हाँ I believe in this God, and we will identify them ourselves with them. All of this identification, all of this attachment, all of this dependence on the other is not a trait of a healthy mind. A healthy mind is a inquiring mind. A healthy mind is the one which asks questions, is the one which is watching, which is seeing that how our behavior, how we are under so much influences that impact us, and it is these things through which we feel a sense of self, and with this sense of self that is dependent on so many things, we operate in life. और जब भी किसी चीज पे कोई अटैक होता है, किसी हमारी किसी एक आइडेंटिटी पे जेपर्डी, इफ वी फील दैट दिस आइडेंटिटी इज जेपर्डाइज्ड, देन वी फील इनसिक्योर विद इन, बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स, वी हैव दिस सर्कल ऑफ मी एंड माइन। हम सारी चीजों से जिनसे हम एसोसिएट करते हैं, हम उनको बोलते हैं ना दिस इज माइन, दिस इज माइन, हिंदी में बोलेंगे ये मेरा है, ये मेरा है।
और जो भी ये मेरा होता है, जब भी इस मेरे पर आंच आती है, तभी ये जो मैं है, जो मी है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। अपने ही जो हमारे घर की दीवार होती है उस पर थोड़ा दाग आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे कपड़ों पे थोड़ा दाग आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। वहां पे कोई एक पीस ऑफ क्लॉथ पड़ा होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दूसरी जगह, कोई दूसरी बिल्डिंग होगी, किसी दूसरे कोई और प्लेस ऑफ वर्क होगी, किसी और जगह की कोई दीवार होगी, उस पर कोई दाग धब्बे होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मेरा है, जो भी माइन है, उस पर अगर दाग धब्बे पड़ने लग जाएंगे तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। यही है लॉजिक ऑफ ऑफेंस का, यही है लॉजिक ऑफ अब्यूज का भी, क्योंकि मेरा है ना, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे घर वाले हैं, और जब उनको कोई कुछ बुरा बोलता है तो फिर मेरे को आंच आने लग, तो तब मैं फिर ऑफेंड होने लगता हूं, है ना, यही तो होता है ना। तब मैं फिर इनसिक्योर फील करने लगता हूं, क्योंकि ये जो मेरा का जो सर्कल है, इससे ये मी बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। मी अपने आप में कुछ भी नहीं है। इफ यू लुक क्लोजली, व्हाट एट द एंड ऑफ द डे इज आई, इज मी। Me is simply the things that it associates itself with, right? The things that it calls mine. What it says कि ये मेरा है। जितना हम ये मेरा बोलते हैं उतना ही मैं बनता है। और जहां जहां मेरे पर कोई आंच आने लगती है, चाहे वो मेरी दीवार हो, चाहे वो मेरे कपड़े हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं, जब इन सारी चीजों पे आंच आने लगती है, जब ये चीजें थ्रेटन फील करती हैं, जब मेरे को लगता है कि इन पे कोई धब्बा लग रहा है, या ये खराब हो रहे हैं, या ये लोग शायद कोई इनको कुछ बुरा बोल रहा है, तब मैं बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाता हूं। तब देखा है ना, मैं एकदम से कैसे छटपटाता है कि अरे नहीं नहीं, दीवार पे धब्बा, अरे नहीं नहीं, कपड़े पे दाग, कपड़े पे दाग, अरे नहीं नहीं, ये मेरे घर वालों को कैसे बोल दिया किसी ने कुछ, है ना। बट बाकी चलता रहे तो लगता है जो भी ये मेरे के सर्कल से बाहर होता है, तभी वहां से ही हमारा इंपैक्ट जो है, हमारी जो एसोसिएशन है, वो बंद हो जाती है। तो जो माइंड है हमेशा, जितना बड़ा उसका ये मेरे का सर्कल होगा, जितना बड़ा उसका माइंड का ये सर्कल है, द मी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट इट सिंपली डाइजेस्ट, इट सिंपली कैप्चर्स, जितनी ये सारी उसका बड़ा सर्कल है, उतना ही माइंड आप देखोगे कि इनसिक्योर होगा। वी कैन हैव अ सिंपल एसोसिएशन, राइट, कि कोई चीज की फंक्शनैलिटी है और वो फंक्शन सर्व कर सकती है, जरूरी नहीं है कि हम उससे अटैच हों। लेकिन हम पाते हैं कि हम अटैच ही हो जाते हैं, हम पाते हैं कि हमें आइडेंटिफाई कराने की जरूरत है अपने आप को। तो हमारी जो बीइंग ही है, इनफैक्ट हमारी जो एग्जिस्टेंस है, जब तक वो बाहर की किसी चीज से डिफाइन हो रही है, जब तक वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रही है, तब तक कोई हेल्थ नहीं है हमारे पास। तब तक हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम बोल सके कि हाँ ये होता है गुड, या ये होती है वेलनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम वील फाइंड कि ये सारी चीजें बाहर की जो हैं, जिन पे हम जाके डिपेंड करते हैं, और जब वो इनसिक्योर होती हैं, जब उन पे कोई अटैक होता है, जब वो वल्नरेबल होती है, तो हम भी वल्नरेबल फील करने लगते हैं। एंड दिस इज व्हाट अ हेल्दी माइंड इज। अ हेल्दी माइंड इज इंक्वायरिंग, इट इज आस्किंग क्वेश्चन दैट हु आई एम, what is my relationship with existence. It asks bigger questions, and you will find that a unhealthy mind, in fact a petty mind, is simply concerned with its own affairs. मेरी जॉब, मेरे परिवार, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा ये, मेरा वो। we the more we limit ourselves to a smaller circle, the more we are self-centered. In fact, self-centered not in an altruistic sense. We are not telling you to go do social work, but this is a complete logical thing. The more we circumscribe ourselves in a limited circle, the more we'll find that we are insecure. A healthy mind is the one which is inquiring, which is asking, which doesn't simply declare that I know all of these things. You will also find that these words that you utter in day-to-day parlance, that you use in your daily language, mind, man, etc., you if you really have to define it, if you really have to say what these things are, you will find that you are out of your depth. Out of after one or two line, after 2 or 3 attempts, you will find that you really don't know what these things are. You really don't know what good is. In fact, हमें जो भी बुरा होता है, जो भी अच्छा होता है, वो बुरे के ऑपोजिट में ही पता चलता है। जब यहाँ पे कुछ अच्छा, जब हमारे पास कुछ बुरा आएगा, उसी का ही जो ऑपोजिट होगा वो गुड हो जाता है हमारे लिए। गुड की क्या अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो वेलनेस होती है, वेलनेस क्या है, हम देखेंगे कि हमारे पास ये शब्द से हम फेमिलियर हैं बहुत ज्यादा।
मी बोलते हैं, हम आई बोलते हैं, हम ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं। इनफैक्ट हम लाइफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लाइफ एग्जैक्टली क्या होती है, ह्यूमन बीइंग होना क्या होता है, हम पाएंगे कि ये सारे शब्द हम लगातार यूज करते रहते हैं, बट वी रियली डोंट नो व्हाट दीज टर्म्स आर। अ हेल्दी माइंड इज वन विच इंक्वायर्स, a healthy mind is one which tries to understand what life really is, not the definitions that it is sold, not the agreed upon idea that everybody else seems to have concluded on to, कि हाँ भाई ये होती है जिंदगी, ऐसे बितानी होती है, कि देखो ये होता है इंसान होना, ऐसे जीना होता है, कि देखो ये होता है गुडनेस, तो हम देखेंगे कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, तो ये हम भी एग्री कर लेते हैं। हम देखेंगे कि हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब बोरोड हैं। हमने खुद से कभी जानने की कोशिश नहीं करी है कि क्या वाकई में अच्छा होता है, कि क्या वाकई में सही है हमारे लिए। ये सारा एक बोरोड कॉन्सेप्ट होगा, हम देखने को मिलेगा हमें। तो जो हेल्दी माइंड है वो इंक्वायर करता है कि क्या सही है, क्या उसके लिए वाकई में अच्छा है। और यही जो इंक्वायरिंग माइंड होता है, जो क्वेश्चनिंग माइंड होता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता बस सिंपली, जो बस मान नहीं लेता, कि जो उसको डेफिनेशंस परोसी जाती हैं कि देखो ये लाइफ में अच्छा होता है, और वो बस एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ये होता है एक हेल्दी माइंड। जो इंक्वायर करने, जो खुद पे भी क्वेश्चन करता है, इनफैक्ट बाहर की डायरेक्शन में तो क्वेश्चन करता ही है, वो अपने भी अंदर क्वेश्चन करता है कि वो कौन सी अजम्पशंस पे चल रहा है, कि उसके अंदर कौन से कंक्लूजन्स हैं। माइंड की एक और टेंडेंसी है कि वो अपने आप को लगातार कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता है, वो चाहता है एक कंफर्ट। इट वॉन्ट्स इनफैक्ट हैप्पीनेस ऑल्सो। हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस ही चाह रहा है ना, वो चाह रहा है खुश होना, वो चाहता है कि जो भी वो करे उसमें उसे एक तरीके की खुशी मिले, उसमें उसको एक तरीके का जॉय मिले। वो इनफैक्ट फिर हम ये देखें कि वो चाह क्यों रहा है ये। हम अलग अलग, हमारे पास तरीके हैं खुशी पाने के लिए, हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, हमारे पास अलग अलग जगहें हैं जहां पे हम जाके खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इंसान पहली बात खुशी ढूंढ ही क्यों रहा है, क्या हम ये पूछते हैं? हाँ, myself Sarthak Arora, and so actually the question was है कि we look for sense of belongingness, right? And we want to fulfill our psychological needs and physiological needs as well. So how can a mind be really autonomous? And should we stop training our, or should we start training our mind to stop defending itself as well? It really confuses with that. Will that really define a mind to be healthy? Like, yeah, a healthy mind asks a lot of questions, but should it defend itself or not, and can it be really autonomous or not? I ask you, what if when the mind is defending itself, when you say that should the mind defend or should the mind not defend, what exactly is this mind trying to defend? Tell me this. What according to you mind is trying to defend? What is it, what that thing is? The things that I believe in myself, or like I believe in. Your beliefs, you're saying your belief, are your beliefs that you have, do we inquire into that, what is my belief actually? You can have those beliefs, you can have belief like I am a good human being, you can have a belief, you know, that I am a kind person, or I am talented in this, I am talented in that. But we have to really understand, right, ki what is exactly a good human being at the end of the day. What that I am trying to defend, when we say that we are, what we are trying to defend is then again a sense, a self image that we are trying to defend. What are we trying to defend? Our own thoughts? Are we trying to defend our own experiences, our memories, our past experiences? Is that what we are trying to defend? You will find all of these things are like a content of the mind. Do you understand by content? These are these various things that exist within the mind, but they are of the past. They have no relevance at the end of the day. Why should a mind have those, carry those beliefs? A mind that carries beliefs is a mind which is simply weighed down by the weight of its own beliefs. That I have to defend this. Don't you see there is a struggle involved, that it is struggling to protect? Whenever you have any belief, whenever you have any self-image, whenever you have those ideas about you, who you are, what you are, you will instantly find that whenever they are challenged, the mind simply is then struggling to protect it. Mind is simply struggling to, you know, preserve them, to safeguard them. And as long as this mind is insecure about its own ideas, you will find that this mind is not fully optimally functional. This mind is always trying to protect. It is under a threat.
that nobody should challenge me, that nobody should, in fact, its own life situations. Sometimes you would find that, you are a kind person, but then you did a thing and you'll realize that I'm not actually kind. And then you say, oh, probably that was a mistake. And when regarding that thing as a mistake is again a defense that you are trying to come up with. The situation of your life has told you something that you may think of yourself as a kind person, but at the end of the day you are not. And do we let then those situations actually show us the mirror? Probably not. We would say that this was a mistake, that ये तो गलती से हो गया. I was not planning to do it, but it just happened by mistake. We would not let that mistake tell us our own reality, because we have this strong belief which we want to preserve, a belief of being kind, a belief of being good, right? All of these beliefs we'll say that will override the fact of our life. And if we are trying to if we just trying to always safeguard, always trying to protect, we'll find that there is a struggle. We are always in a state of conflict with anything that challenges us, with anything that tells us otherwise. And at the end of the day we have to see that where are these things, what is that we are trying to preserve, because all of these things actually at the end of the day contribute to our self image, contribute to our sense of self. And we'll find that this sense of self is actually a smoke screen. It really doesn't exist. There is the sense of self that we have of ourselves in our mind. It is based on its own past experiences, it is based on its memories, it is based on what other people have told it, that you are this, or you are that, or you are handsome, or you are smart, or you are rich, etc., etc. All of these things just simply attaches themselves one over the other, and then this whole collection becomes your sense of self. But take everything apart, what do you find there? Nothing, right? And this is what this sense of self is really based on, actually nothing. It is an illusory idea that we are trying to protect, that we are trying to safeguard. And in trying and in doing this effort, by trying to protect this illusory idea, by trying to protect this collection of identities, this collection of things that we attach ourselves with, these multiple labels that we have over us, of a brother, of a son, of a friend, etc., etc., all of these things we'll find that at the end of the day are just labels, are just mere words, is just a thing of memory which is just stored in our brain cell that we are trying to protect. And it is this struggle which results in an inner conflict. Anybody else wants to ask something? Okay, how to discipline a distracted mind? How to discipline a distracted mind? Good question. The mind which is distracted, first of all, the mind which is which runs in 10 different ways, in 10 different directions, we'll see that this mind has no space. This mind has nothing which really is able to observe. It is able to look at its own self. It is so clustered with the weight of its own concepts, with the things that it has collected from the past. All of these things are so in closer relationship with the other that we'll see that there is no space within. And having no space, we'll see that this mind is always distracted, and then most of the time attracted. What is it? The opposite of distraction becomes attraction. That it is attracted to something, then it is distracted on the other way. Then one corner of the mind is pulling it in one direction, the other corner is pulling it in the other direction. One entertainment here, one entertainment there. It is always trying to look for comfort. The distraction at the end of the day, we'll find that we are distracting from something, right? And the thing that that it has on its hand, that it is present with, it will find that this thing is not appealing to it, this thing is not so attractive, and then it distracts itself to other thing which it finds attractive. Distraction at the end of the day is what, right? The thing that you are involved in, you are not entertained, it doesn't interest you,
and in order to go in a different direction, you find other things that are attracted, that you feel attracted towards, that you think are more entertaining. Try to see that all of this distraction that plays on our mind are simply a result of not knowing that why you are involved with the thing in the first place. डिस्ट्रैक्शन हमें तभी महसूस होगी जब हमें सामने वाली चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी, जब हमारे पास कुछ जो होगा और वो अट्रैक्टिव इसके रिलेशनशिप में ही लग रही है. ध्यान देना, क्योंकि ये अपने आप में हमने डिक्लेयर कर दिया है कि शायद ये बोरिंग है, ये शायद इतना अच्छा नहीं है, और फिर हम दूसरी चीज के पास जाके के साथ जाके अट्रैक्ट हो गए हैं उससे, है ना. उससे जाके इनफैक्ट वी आर इनफैचुएटेड. In fact, we simply close our eyes and begin to follow it, because it is this thing that we are doing. We do not have a deeper insight. We do not understand why we are doing the thing that we are doing. And it is this divided entity, it is who we are within, which is distracted, that simply attracts with the other 10 different things which are in its environment. उसके पास जो खुद का है वही, उसमें कुछ गहराई नहीं है. वो नहीं जानता वो कर क्यों रहा है जो वो कर रहा है. इसीलिए जब वो उसके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज जो उसे थोड़ी सी भी इंटाइसिंग लगती है, और जैसे हमने बताया मन का जो काम है एक तरीके से एंटरटेन करना अपने आप को, मन का काम है अपने आप को कंफर्ट देना, मन का काम है अपने आप को ग्रेटिफाई करना. तो जहां उसे ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जहां उसे कोई दूसरी चीज अट्रैक्टिव मिलती है, वो उसके पास चला जाता है. माइंड की ऑप्टिमल स्टेट क्या होती है? माइंड की ऑप्टिमल स्टेट क्या होती है? क्या नाम है आपका? ईशांक. माइंड की ऑप्टिमल स्टेट क्या होती है, इन्होंने पूछा. हाँ, स्लीप, व्हेन माइंड इज काम. तो माइंड की ऑप्टिमल स्टेट हम कह रहे हैं कि काम है, इन्होंने तो बोला स्लीप है माइंड की ऑप्टिमल स्टेट. बट अगर हम बोल रहे हैं कि कामनेस माइंड की ऑप्टिमल स्टेट है, तो वो तो कुछ एक केमिकल से रिलेटेड होता है ना, कि कुछ भी आप माइंड में केमिकल सीक्रेट हो गए तो वो अपने आप को बहुत काम महसूस करने लगता है. और यही आप देखो, जब हम एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा परेशान हैं, जब हम ही थोड़े एंग्शियस हैं, तो हम काम फील कराने के लिए अपने आप को वी कैन एंगेज इन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. हम प्रोबेबली ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाएंगे और वो उससे हमें थोड़ी एक कामनेस मिलने लग जाएगी. हम शायद ईटिंग, we'll probably overeat and we'll find satisfaction. We'll try to engage in entertainment and we'll find satisfaction. A satisfied mind is not a healthy mind. A satisfied mind is simply being dulled down. It is simply being, it is administered some relaxation from the outside environment. It in itself not a satisfied mind. अगर वो माइंड हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, माइंड अगर वो ढूंढ रहा है ताकि उसे कुछ मजा मिले, तो इसका मतलब क्या है? हैव यू सीन डिफिब्रिलेटर? एनीबॉडी ऑफ यू नो डिफिब्रिलेटर क्या होता है? एग्जैक्टली, इट इज यूज्ड व्हेन द हार्ट इज नॉट बीटिंग बाय इटसेल्फ एंड इट नीड्स अ शॉक टू बीट, राइट? उसको कुछ बाहर से एक शॉक दिया जाता है ताकि उसकी जो रिदम है वो उसको थोड़ा अवेकन करा जा सके. हाँ, डिफिब्रिलेटर, एग्जैक्टली. तो हमें भी फिर जो एंटरटेनमेंट होता है, हमारे साथ भी फिर यही होता है. हमारा जो साइकोलॉजिकल हार्ट है, इट इज नॉट बीटिंग बाय इटसेल्फ. इट इज अ फ्लैटलाइंड माइंड. जो हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट है वो एक फ्लैटलाइंड स्टेट है. और एंटरटेनमेंट क्या करता है फिर? एंटरटेनमेंट वो शॉक होता है कि वो जगाता है उसको. तो इट इज नॉट एबल टू बीट बाय इटसेल्फ. अवर साइकोलॉजिकल माइंड इज अ डेड माइंड. Because if we constantly look for entertainment, if we constantly look for stimulation from our external sources, we'll find that this mind is not an optimal mind. Because what it is doing, it is trying to gratify itself from different resources. It is trying to entertain itself from external sources. And as long as the mind is always trying to seek entertainment, it is always trying to seek stimulation, this mind does not अंडरस्टैंड व्हाट इनवर्डली इट इज. हम हमेशा जो डिजायर कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए जिससे हमें एक सेटिस्फैक्शन मिले, आप पाओगे कि ये सारी इच्छाएं ऑलमोस्ट वी आर कंपेल्ड टू फॉलो देम, राइट? वी आर ऑलमोस्ट वी आर डेस्परेट इवन टू हैव आवर विशेस बी फुलफिल्ड.
because we think that fulfilling our wishes would give us a deeper satisfaction that we are looking for, would give us that happiness that our mind actually needs. लेकिन हर खुशी के बाद, हर इच्छा पूरी हो जाने के बाद, हर डिमांड फुलफिल हो जाने के बाद क्या होता है? दूसरी डिमांड, है ना, फ्लैट लाइन, दूसरी डिमांड आती है ना, भी तो हो जाता है उस डिमांड को लेकर। बट फिर उसके बाद फिर से भी तो मोमेंट्री, आई एग्री, मोमेंट्री है ना, फॉर टाइम बीइंग, इट इज ट्रांजिएंट रियली. It is almost like that you felt a scratch and you scratched and then what? You are still again at that place. Yeah? That you are again dissatisfied. You are again restless. You again trying to wish for something. You are again looking for a stimulation. Any outside thing that would satisfy you. Right? Huh? Eagerness to achieve. Eagerness to achieve भी क्यों है? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर अचीवर महसूस कराया जा रहा है. अचीवमेंट का जो पूरा लॉजिक है, जो पूरा साइकोलॉजी है, आप देखोगे कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस क्यों पाने की कोशिश करता है? क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कराना चाह रहा है कि ये चीज करके वो अपने आप को बता देगा कि ये कुछ है. अब दैट उसको अपने आप में एक बड़ी स्ट्रेंथ, बड़ी अपने आप में एक लाइफ लाइक क्वालिटी लगती है जब वो कुछ अचीव कर लेता है, क्योंकि वो फाइनली अपने आप को बता पाया है. हाँ, भी तो हो जाएगा उस चीज से अल्टीमेटली वो कि हाँ मैं ये चीज अचीव कर लिया तो सैटिस्फाई हो गया. आपकी बचपन में कोई डिमांड्स थी जो आप चाह रहे थे कि ये सेटिस्फाई हो जाएं, क्या आप सेटिस्फाई हो गए उनसे? अब आपके पास इस पॉइंट पे अलग डिमांड्स है ना. बचपन में वो कंप्लीट हो गई थी, तो आपने जैसे बोला ना कि सेटिस्फाई हो गए थे आप, फिर इसके बाद फिर से अभी हम कहाँ हैं? आज हम फिर से एक जगह पे हैं जहां पे हमें फिर से कुछ सेटिस्फाई करवाना है अपने आप को, हम फिर से कोई डिजायर कर रहे हैं. तो जो माइंड इसी सर्कल में घूमता रहता है, ये माइंड ऑप्टिमल माइंड नहीं हो सकता कि वो एक डिमांड करता है. तो कंक्लूजन क्या है आपका? रुको, कंक्लूजन क्या है? हाँ बता रहा हूं. जो माइंड हमेशा इसी सर्कल में घूम रहा है बार बार, वो चाह रहा है कि हाँ उसको कोई सेटिस्फैक्शन मिले, वो चाह रहा है हाँ उसे कोई डिजायर मिले, ये माइंड ऑप्टिमल माइंड नहीं है. ऑप्टिमल माइंड वो है जो अपनी स्टेट को पहचान सके, वो ये देख सके वो किन चीजों से ड्राइव हो रहा है, वो थोड़ा अपने ही फंक्शन को समझ पाए, वो बाहर की चीजों से ड्राइव ना हो रहा हो. हमारा माइंड ऑलमोस्ट प्रोग्राम्ड एक माइंड है, वो कोडेड है पीछे से, और जब तक उसको पता ही नहीं है कि वो किस कोड पे रन कर रहा है, जब तक उसको पता ही नहीं है कौन सी कंपल्जन उसे चला रही हैं, कौन सी उसी के ही स्ट्रिंग्स उसको चला रहे हैं, कौन सी डिजायर्स उसे चला रहे हैं, उसका फियर उसे चला रहा है, उसकी ग्रीड उसे चला रही है, जब तक वो ये सब जानता ही नहीं है, तो ये माइंड एक सब ऑप्टिमल माइंड है. जो माइंड अपना फंक्शन समझ लेता है, जो माइंड ने अपना ही कोड इनफैक्ट क्रैक कर लिया है, उसको दिख गया है कि वो किस प्रोग्राम पे चल रहा है, वो उसको दिखने लग गया है कि किस कोड पे वो रन कर रहा है, ये माइंड होता है एक लाइवली माइंड, और ये माइंड होता है एक ऑप्टिमल माइंड. नहीं तो हमारा जो माइंड होता है वो एक ऑटो पायलट होता है. कभी कोई लेटेस्ट ट्रेंड आया, हम उसके पीछे जाने लग गए, किसी ने बोला कि ये आपके फायदे का है, हम उसके पीछे जाने लग गए, कभी किसी ने बोला कि हाँ ये चीज ठीक है, इस फील्ड में चले जाओ, हम उसके पीछे जाने लग गए. हम यही करते हैं ना, माइंड बस इसी डायरेक्शन में जाता रहता है, उसको अपना कुछ नहीं पता होता, वो हमेशा बाहर की चीजों पर रिलाय करता है उसे बताने के लिए कि हाँ ठीक क्या है, कि हाँ सही क्या है. इन्फॉर्मेशन भी तो बाहर की दुनिया से मिलता है. हाँ, इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया से मिलता है, लेकिन वी आर नॉट कंपेल्ड, वी आर नॉट, इट इज नॉट अ नेसेसिटी टू फॉलो दैट इंफॉर्मेशन, we simply follow that information, right? Like what we do is कि like हम on base of information we take decisions accordingly, right? Hmm. That is also like हम कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पे तो हम जो recall उस पे dependent है. किसी हाँ डिपेंडेंट है, एग्जैक्टली. जैसे कोई if somebody is teaching you to drive a car, right? And you are learning by them. This is an information that you are receiving, that you know this is how you drive a car, this is how you gear shift, etc., etc. Mind optimal नहीं है. हाँ रुको, wait. But then if they have taught you the car, but they are also telling you where to drive this car now, then that becomes a problem, and you will see that the one who has given us the information also drives us to our destination also. We do not know, we unknowingly let the other become the driver. We just have our hands on the steering, but the destination is decided by the one who has given us the information.